welcome to today's class. I think so far you have already studied something about the basics of electromagnetic induction. It starts from Faraday's laws, Lenz's laws, okay, and we have derived many things like motional EMF when a conductor moves in a magnetic field. There is always some motional EMF that is produced, okay, etc. Now, just further study, if we do further in this field, we may come across with some processes where we take a single coil or a double coil. If we have a single coil where we connect it with battery, okay, and also with the rheostat, and when current is changed, what happens? Some sort of magnetic flux associated with that coil changes, okay. Since there is already one main current, and due to this change in magnetic flux, some induced current will also be there, and that type of thing is quite inter-contradictory. That is, one is main current, other is induced current. They always oppose each other. A main current does not change its direction, and therefore it is the induced current. When the main current is decreased, the direction of induced current will be in the same direction. When the main current is increased, the direction of current will be just opposite, okay. Such type of electromagnetic induction is called self-induction. But self-induction we will discuss later, and the most important electromagnetic induction is your mutual induction. Today we will discuss the mutual induction, okay. When you can have two coils very close to each other, you can just observe, and one of the coil is connected to a rheostat and a cell, rheostat and a cell, and another coil is not connected to any cell, but it is only connected to a galvanometer, okay. When we change the current by moving the rheostat here like this, then what happens? Some magnetic flux is produced in this coil, and due to change of current, there will be some change in magnetic flux. So it is very close to this. Some magnetic flux is imposed to this, okay. That means due to the change of current in this coil, there is change of magnetic flux in this one, second one, and due to this, some induced EMF is developed in the second coil where there is no source of current, no source of EMF, and this type of electromagnetic induction is called mutual induction, okay. Then if anybody asks you what is a mutual induction, mutual induction takes place when two coils are placed very close to each other, and current flows in one coil only, and due to that, magnetic flux changes in the second coil, and there is an EMF developed in the second coil where there is no current source. Such type of development of current in second coil due to the current in first coil is called a particular type of electromagnetic induction, and that particular type of electromagnetic induction is called your mutual induction, okay. That means we can say when two coils are placed close to each other, then one of the coil has some change in current so that
the magnetic flux in the second coil is affected thus an induced EMF is developed in the second coil. Such type of electromagnetic induction is called mutual induction. Okay, now this is what we have, the general term of mutual induction, where suppose we have the current passing in the first coil is I1 and total number of turn in second one is N2, here it is N1. Okay, then total flux length to second coil is called flux linkage, that is N2 into phi2. Okay, this flux linkage is directly proportional to the current flowing in first coil. N2 phi2 is directly proportional to current flowing in the first coil. We have N2 phi2 equals to M into I1. Okay, and this M is called N2 phi2 upon I, N2 phi2 upon I1, simply mutual inductance or coefficient of mutual induction. This is one of the new physical quantities where you have the term like mutual inductance, like capacitance, resistance. Here also it is a new physical quantity that is called mutual inductance. Okay, when we call mutual inductance, since here induced current is developed due to the change in current in this one will be called as mutual inductance of second coil with respect to first coil. Okay, now after this, what we just determine that what is the unit and dimension. Yes, you can just observe it is the unit of mutual inductance equal to the unit of flux upon unit of current. Unit of flux is your Weber, magnetic flux is Weber per ampere. The whole of this ratio is called as Henry. Okay, this is also denoted by H, capital H. This is the unit of self inductance as well as mutual inductance. Here we are discussing mutual inductance. Let it be ओनली म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अगर इसको हम लोग सोचे कि हिंदी में सोचे कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे क्या चीज़ होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अब ये समझ लीजिए कि दो कॉइल है.
दो कॉइल में, एक कॉइल में अगर मैंने कुछ तब्दीली किया, कुछ चेंजेस किया, करंट में चेंजेस, हेरफेर किया, वोल्टेज को आगे पीछे किया, कुछ भी किया, तो उसको देखा देखी सेकंड वाले में अफेक्टेड हो जाता है। तो अब ये समझ लीजिए कि एक दो लड़के समझ लीजिए हैं, एक तो पूरा साधन वाले लड़के जिनके पास किताबें हैं, उनके पास कंप्यूटर है, बहुत कुछ मोबाइल है, सब कुछ है। उसके बिल्कुल पास में पढ़ने वाले एक लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे से दोस्ती खूब है, बहुत नियरेस्ट, एक दूसरे के घर पे आमने सामने रहते हैं, समझ लीजिए बहुत ही पास में है। अब क्वेश्चन क्या, जैसे पहला वाला पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो दूसरा वाला एक्साइटेड होकर वो भी पढ़ना चालू कर देता है, कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। ये नहीं कहूँगा कि जितना पढ़ता है उतना ही वो भी पढ़ लेगा, वो नहीं कहूँगा, बट देयर इज एन इफेक्ट इन द माइंड ऑफ दैट स्टूडेंट। उस लड़के के दिमाग में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, एक परिवर्तन आता है जिसको हम कहते हैं फ्लक्स चेंज। और वो फ्लक्स चेंज किसके कारण है? पहले वाले में करंट दौड़ने से। अगर पहले वाला बच्चा किताब बंद करके रहा है, कुछ ना पढ़े लिखे, तो दूसरे वाले में कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन जैसे वो कुछ स्टार्ट कर देता है तो दूसरे वाले में भी इफेक्ट आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया? हेनरी, वेबर पर एम्पियर। अगर मैं इसको ईएमएफ से जोड़ूं तो अब ये देख सकते हैं, इनको हम जनरल कह देंगे। ये फॉर्मूला कह सकते हैं कि M इक्वल टू N∅ अपॉन I। मैं यहाँ पर 1 2 कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा, और आपको मालूम है EMF, इंड्यूस EMF जो होता है, ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt, ये आएगा। तो फाई की जगह आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटल होगा तो यहाँ पर n वो भी रहेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न है तो E N∅ d∅ अपॉन dt, और N∅ बराबर होता है Mi। ये होता है आपका Mi के बराबर। E इक्वल टू माइनस Mi d अपॉन dt ऑफ दिस। M एक कांस्टेंट है, M di अपॉन dt with minus sign. That means we can write M equal to E upon minus di upon dt. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक ये डेफिनेशन हो सकता है, इट इज द रेशियो बिटवीन in induced EMF and the rate of change in current. Remember, you can just note down this definition also. The mutual inductance between two coil is the ratio between induced EMF and the rate of change in current, as you observe here. From this we can find out the डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ M अगर निकालना चाहे, डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ E हो जाएगा डायमेंशन ऑफ E अपॉन, ये तो आपको दिख ही रहा है, AT-1, ये होता है एम्पियर और P है सेकंड के लिए। डायमेंशन में E होगा mL² T-2 अपॉन चार्ज A-1 T-1 होल अपॉन AT-1। अल्टीमेटली वी हैव mL² T-2 A-2। This is what we have, the dimension of coefficient of
mutual induction or the dimension of just mutual inductance. ठीक है, तो इनके हिसाब से हम लोग ने रिलेशन भी देख लिया था कि m इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज और म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू E अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पर हम लोग ने ये देखा. ठीक है, तो जितने हल्का फुल्का से मैथमेटिक्स तो ज़्यादा होता नहीं, वो हम लोग ने अभी यहाँ पर देखा है. एक आपको मालूम होना चाहिए दैट इज व्हाट वी डू इफ वी हैव टू कॉइल्स. If we have two coils, then what will be the magnetic field between them? Mutual inductance between them. Mutual inductance between two coils. क्लियर? तो अब दो कॉइल है. अब कैसे दो कॉइल है, मान लेंगे जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है. ठीक है, और दूसरा अब ये समझ लीजिए कि इसी के साथ साथ है, इतने लेंथ का है, बट इट इज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स एंड डिफरेंट रेडियस. नीचे वाले को हमने, अंदर वाले को हमेशा करंट देता है. ये I1 करंट दिया हमने, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स है N2. द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्मॉलर वन इज R1 एंड दैट ऑफ बिगर वन इज Okay, this is a general thing about two coaxial coils of equal length, but their radii are different and their number of turns are also different. And suppose I consider the length of the coil, each coil is L. Okay, ये हम लोग ने मान के चले, यहाँ पर ये दोनों का लेंथ L है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1 है. देखिए, प्लीज वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर व्हेन एवर वी डिस्कस समथिंग, तो एक चीज तो आपको हमेशा बता दे कि हम लोग इस चैनल में खास बात ये है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली चीज दिखा देते कि एक्सपेरिमेंटली कि कैसे क्या होता है. खाली थ्योरी बता कर काम नहीं चलाते. हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग ने काफ़ी इस फील्ड में अलग अलग वीडियो देखे होंगे, यहाँ पे खाली थ्योरी दिखाए होंगे. याद को हाई टेक्नोलॉजी यूज किया, पीछे स्लाइड चल रहा है, पीछे कोई आपका जैसे स्मार्ट क्लास चल रहा है, तो वैसे नहीं है. ये बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन फिजिक्स को जड़ से समझने के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत आपके रिसर्च ओरिएंटेड कुछ ना कुछ मैटर जानना बहुत जरूरी. इवन इन क्लास 12 और क्लास 11 थोड़ा छोटे आपको एक्सपेरिमेंट जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है. मैं ये पहले दिखा देता हूँ कि पहले कैसे मैंने म्यूचुअल इंडक्टर निकाला हूँ, फिर मैं म्यूचुअल इंडक्शन करके दिखाऊंगा आपको वास्तव में कैसे कॉइल से एक कॉइल से दूसरे कॉइल ट्रांसफर हो रहा है बिना कॉन्टैक्ट के, बिना बैटरी के, वो मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो प्लीज़ आपको इसीलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखें. ये कहना बहुत ज़रूरी है. आप लोग क्या कर देते, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेते और बीच का पोर्शन आप हमेशा छोड़ देते. तो बहुत समय मेन आपका डेरिवेशन छूट जाता है या आपका वो छूट जाता है, एक्सपेरिमेंट छूट जाता है. ठीक है, लेट अस डू दिस डेरिवेशन. वी आर हैविंग these two things. I am not writing anything, but you just see that the radius of inner coil equal to R1, the radius of
outer coil is R2. ठीक है, और चीज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इनर कॉइल और सोलेनॉइड equal to N1 and the number of turns of outer coil solenoid equal to N2. Therefore, we can write number of turns per unit length equal to N1 and N2 respectively. इसमें N1 क्या हो जाएगा, कैपिटल N1 अपॉन L, N2 हो जाएगा कैपिटल N2 अपॉन L. ओके, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. क्योंकि ये सोलेनॉइड फॉर्म में है तो हम लोग सोलेनॉइड का ही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग ने अंदर वाले में करंट डाला. वी हैव इंट्रोड्यूस करंट इन द इनर कॉइल. करंट I1, करंट I1 is introduced in the inner coil. इनर कॉइल, ठीक है. अब इसमें कॉइल से देने से क्या हो जाएगा कि वी कैन सी द फ्लक्स चेंज will occur in the second coil. That means total flux linkage of the second coil must be proportional to current in the first coil. तो अब सेकेंड में कैसे फ्लक्स आएगा ये देखना होगा. तो सेकेंड में फ्लक्स आएगा कहाँ से, ये तो मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला प्रोड्यूस करेगा, वही इनके ऊपर आएगा, सेकेंड कॉइल के बाहर वाले कॉइल के ऊपर आएगा. The magnetic field is produced by the inner one and the same will be exposed to the outer coil. तो हम लोग ने यही हम लोग को नेक्स्ट निकालना है. The magnetic field produced by the inner coil. V1 equal to mu naught N1 I. Mu naught N1 I. Okay, this is what first one. And this magnetic field is exposed to second coil. This magnetic field is exposed to outer coil. Therefore, the flux linkage equal to second coil N2 phi2 equal to magnetic flux produced by the first one, that is V1 into pi R1 square. Pi R1 square the cross section area of the inner coil, and V1 is this one
म्यू नॉट N1 I N1 I and pi r square. This is in place of your phi 2, and then we can have N2 also. Magnetic flux produced by the first one N2 that is mu naught N1 capital N2 I by R1 square. This is your N2 phi 2. N2 phi 2 क्या हुआ? म्यू नॉट N1 N2, ये स्मॉल n1 है, ये कैपिटल N2 है, और ये है आपका दिस मच I और दिस. And you know it well, N1 is nothing but it is total number of turns in the first coil upon length. तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 I पाई आर स्क्वायर अलग लिखे हम, पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन L. This is N2 phi 2. This is your equation number 1. तो जब ये आ जाएगा तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन में क्या बताते हैं कि फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेकेंड कॉइल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग द फर्स्ट कॉइल. ओके, तो हम लोग ये देखेंगे, फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेकेंड कॉइल इक्वल टू N into I, where I is the current in the first one. तो हम लोग ये कहेंगे कि N2 phi 2 equals to N into I. Okay, and then after this we will have to place this N equal to N2 phi 2 upon I. N2 phi 2 is this much. Mu naught N1 N2 I pi R square upon L all upon I. I cancel out. We have mu naught pi R square N1 N2 upon L. This is your mutual inductance between the coil. Remember that since it is a coaxial matter, therefore it is always preferred, ये हमेशा हम लोग इसको प्रेफर करेंगे कि जब कोएक्सियल मामला होता है तो अंदर वाले को हम लोग करंट देते हैं जिससे बाहर वाले में फ्लक्स लिंकेज प्रॉपर पहुंच पाए. अब ये समझ सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते थे, बाहर वाले को मैं कॉइल वो करंट देता, उससे अंदर का निकालते, उससे क्या होता है कुछ बाहर एक्सपोज हो जाता है, ये कुछ इससे अपने से भी बाहर चले जाए, अंदर तो कुछ पहुंचता ही है, कुछ बाहर भी चले जाते, देयर इज सम लॉस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट. तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, या तो हम आमने सामने रख देते, जैसे एक कॉइल की ये रखा, दूसरे कॉइल का ऐसे रखा, पैरेलल रखा, देन वी कैन हैव गुड म्यूचुअल इंडक्शन, और वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ कोएक्सियल, जैसे एक ही है दूसरा ये, दूसरा कॉइल ऐसा लग दिया, तो क्या हो जाएगा अंदर वाले को करंट देंगे तो इसमें भी करंट दौड़ेगा, इसमें भी आपका इंडक्शन आएगा, एंड दैट इंडक्शन is directly proportional to current in the first one, like this, and we have mutual inductance between two coil given by this formula. Okay, तो ये तो एक जनरल आइडिया आ गया. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे
कि कैसे प्रैक्टिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस आप क्लासरूम में देख सकते हैं, आप अपने घरों में बना कर देख कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं है, एक ट्रांसफार्मर बाजार में मिलता है और 40-50 रुपीज़ का मिलता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, 24 वोल्ट AC आउटपुट देने वाला, या बहुत 12 वोल्ट AC देता है आउटपुट। तो वैसे एक ट्रांसफार्मर लेते हैं और सिंपली आपने क्या किया कि जो कॉपर वायर मिलता है बाजार में, 36 गेज वाला मिलेगा, 25 गेज का मिलेगा, 25 थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो 36 गेज का सही है, 30 गेज का सही है, ले सकते हैं। और उसको दो आमने सामने कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वाइंड करें। ध्यान दीजिएगा, दोनों को वाइंड करने के बाद दोनों के एंड जो होगा, क्योंकि वो तो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होंगे, तो उसमें तो एनामेल्ड होंगे, तो उसको आप हटाने की जरूरत नहीं है, उसको इंसुलेटेड रहने दीजिए। दोनों के एंड को आप थोड़ा ब्लेड से क्लियर करके उसको आप ट्रांसफार्मर से जोड़ दें। और दूसरे वाले में जो दूसरा कॉइल बनाया, दूसरे कॉइल से आप कोई LED वगैरह कुछ जोड़ दें, तो व्हाट विल हैपन, आपको मिलेगा कि जैसी लाइट ऑन करेंगे तो आप देखिएगा कि LED भी ग्लो करेगा, जबकि LED कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो जो LED वाला जो कॉइल है, देयर इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस, तो उससे डिस्टेंस जितने पास ले आता है उतने स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का लाइट मिलता है। जैसे जैसे दूर ले जाते हैं, दैट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। नॉट ओनली दिस, अगर मैं फेज चेंज करूँ दोनों के बीच, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच, तो उस समय भी देखा जाता है कि इंटेंसिटी में फर्क आएगा। तो ये बहुत अच्छेदार मजेदार एक्सपेरिमेंट है, और जिसमें कि आपको साक्षात दिख जाएगा कि कैसे हाउ यू एग्जैक्टली सी द म्यूचुअल इंडक्टेंस in front of yourself, inside the classroom, and also you can do it in home. Okay, please try. You can see this is the experimental arrangement. What we have, this is just a transformer, a step down transformer. Output is 24 volt, 12 volt AC, and these are two coils. ये दो कॉइल है, इसमें 500 टर्न्स दे रखा है, हमने लगाया है। और इसमें जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये 30 गेज वाला है, आप इसको 36 वाला भी ले सकते हैं, और वो बहुत थोड़ा पतला हो जाएगा, 25 तो और मोटा हो जाएगा। और इस टाइप के कुछ न कुछ आप लगाइए इंसुलेटेड कॉपर वायर। इनके दोनों एंड्स को ध्यान दीजिएगा कि उसको आपको छीलना है ब्लेड से, ताकि वो उसमें एनामेल पार्ट हट जाए। इतना कर लिया। इसके बाद क्या किया कि इस वाले कॉइल में आपने एक LED बांध दिया, लगा दिया, जोड़ दिया, और इसमें आपको ट्रांसफार्मर के दोनों एंड से जोड़ दिया। बीच सेंट्रल टैपिंग को छोड़ दिया मैंने, सो दैट यू कैन हैव 12 वोल्ट AC अप्रॉक्सीमेटली टू द इनपुट ऑफ दिस। यहाँ पे काफ़ी कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस वगैरह होगा, जिससे यहाँ तक आते आते हो सकता है, या जो आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो उससे कुछ कम वोल्टेज मिले। एनीवे, हम देखते हैं। और इसको ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया स्विच से, मेन स्विच बोर्ड से। आप देख सकते हैं कि इसमें जल रहा है। और इसको अगर मैं थोड़ा दूर ले जाता हूँ, देखिए जलना कम हो गया और इसका इंटेंसिटी कम हो गया। जैसे जो पास ले जाता हूँ पहले कॉइल के, देखिए इंटेंसिटी इसका बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके बीच बिल्कुल भी गैप है, कोई कांटेक्ट नहीं है। आपने कनेक्शन खाली इस वाले कॉइल को दिया, फर्स्ट कॉइल को दिया, लेकिन करंट इसमें दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, वो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स N2 is directly proportional to current flowing in the first one, so that you can have the concept of mutual induction. और concept of mutual induction से देखिए क्या सुंदर बत्ती जल रही है, आपको लाइट जलते हुए दिख रहा है। और इसको आप अगर डायरेक्शन चेंज करिए तो फेज चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे आपने रखा था, यहाँ पर रखा था,
आपने क्या इसी को जस्ट उल्टा कर दे, you can have some light well inside, but outside there is no light, but here well much away from that distance you can have very brighter light. तो ये सब जो मैजिक आपको जो दिख रहा है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन को दिखा रहा है। जैसे ये कॉन्टैक्ट लेंगे, देखिए इतना तेज लाइट आ जाता है, आपको कॉन्टैक्ट रखना ही नहीं है, आपको डिस्टेंस में ही रखना है, तभी इसका असली म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट आ सकता है। तो विद दिस एक्सपेरिमेंट आई एम कंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर, और ये सब आपको बता देंगे कि जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं हर एक में कुछ ना कुछ आपके ऐसे इनोवेटिव फिजिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। तो आप थ्योरी के साथ साथ अगर एक्सपेरिमेंट देखते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जेई या नेट में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं, क्योंकि आप में विजुलाइजेशन पावर रहेगा। विजुलाइजेशन पावर खाली आपका फॉर्मूला डेरिवेशन करने से नहीं आएगा, खाली आपको इक्वेशन रटवाने से या न्यूमेरिकल रटवाने से नहीं काम होगा। अगर इफ यू सी द थिंग प्रैक्टिकल, हाउ इट इज़ मैथमेटिकली सॉल्व एंड हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली डन, अगर दोनों को बीच अगर आप तालमेल प्रॉपर बैठा देते तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल नॉट ओनली इन बोर्ड फिजिक्स बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। विद दैट इज ओके टुडे। ओके, फाइनली आई मस्ट रिमाइंड एवरीवन, प्लीज़ गो थ्रू द एंटायर वीडियो एंड बीच बीच में पॉज कर करके उसको रिमाइंड कर करके अब दोबारा देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और उसको जो नोट्स बनाना है बीच बीच में पॉज कर करके आप नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।